Hi, good evening. My name is Rohit Gupta and I welcome you on my YouTube channel, Global Gupta channel. In the series of entrepreneurship, today I came with a interesting topic which help not in the journey of entrepreneurship, but it is important in the all aspect of the life. The name of topic is the negotiation skill and techniques. Because in every part of the life, if you're not good in the negotiation skill, you always feel cheated and you not fulfill your objective. So let's start today's topic with the mode of with the help of PPT. Now I started. I came in PPT. Just you see that today's topic is the negotiation skill and techniques. In the introduction, negotiation or negotiating is the constant feature of the everyone life. Every life it is very, very important. Either in your family, friend, or where you work, and whenever you meet to any person, either shopkeeper, either friend, this aspect is very, very important. In that term, in the short term or dictionary term, we will say that negotiation means some chatting, some discussion with an objective to either increase the cost or fulfill the arguments. Negotiation is the process of bargaining. Simple term, bargaining. The negotiation is the process of bargaining where two parties trying to reach on the agreement or mutual accepted term to acquire each other wants. एक दूसरे की wants जहां पे मीट कर जाए, जहां पे दोनों पार्टीज एक्सेप्ट कर जाए, उस प्रोसेस को ही हम नेगोशिएशन बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, customer trying to negotiate with buyer over a price of the product, and employer and employee, the common problem and common things, because the employer not want to give more salary and employee is not interested to take less salary in his skill. So that point of the time, negotiation is very, very important. Now we define how we define that negotiation. As per the expert says, for the example, in the words of the Bill Scott, a negotiation is the form of meeting between two parties. Our party, that me, or our party. इसका भी आप देख रहे हैं, हाँ. And other parties, the opposite party. According to J. and Wells, negotiation is a process in which two or more parties exchange goods or service or attempt to agree on the exchange rate them. Two or more parties exchange either goods or service, या फिर हम बात करेंगे attempt to agree on the exchange rate. किस जगह पे हम दोनों negotiate हो सकते हैं, वहां पे हम एक प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे. अगर उस प्रोसेस को हमने कंप्लीट कर दिया, उसी को यहाँ पे नेगोशिएशन कहते हैं. एज पर विंस्टन एडवांस डिक्शनरी के हिसाब से द डिस्कशन, मैंने आपको पहले बताया, द डिस्कशन एंड बार्गेनिंग दैट गोज ऑन बिटवीन पार्टीज बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड और डील इज एग्रीड अपॉन. या तो कॉन्ट्रैक्ट सेटल होने के समय या डील स्टार्ट होने से पहले, जहां पे दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक हो जाए, उस पॉइंट को ही हम नेगोशिएशन बोलेंगे. अब नेचर क्या होता है नेगोशिएशन का? व्हाट इज द नेचर ऑफ द नेगोशिएशन? इट रिक्वायर्स एटलीस्ट दो पार्टी. अगर दो पार्टी नहीं होंगी तो नेगोशिएशन हो ही नहीं सकता है. सिंगल पार्टी थोड़ी नेगोशिएशन करेगी. एटलीस्ट रिक्वायर्ड टू पार्टीज. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी. अ प्रोसेस नॉट अ इवेंट. ये एक प्रोसेस है. ऐसा नहीं कि सबको इकट्ठा कर लिया होगा चलो नेगोशिएट करती है. नो, इट इज अ ओनली प्रोसेस.
जहां पे दो या उससे ज्यादा लोग मिलेंगे. The two or more parties involved to negotiate with a common objective or to achieve the objective needs effective communication. Communication is very very important in the negotiation. हम आगे बताएंगे इसको कैसे होता है. Continuous process है ये between buyer and seller, employee and employer for wages, working hours, etc. And negotiation तभी fulfill होगी जब win to win situation both the parties के लिए होगी. Why the negotiation skill is important? Negotiation skill are skills that help an individual negotiate effectively or reach to a agreement in conflict situation. On analyze a problem, effective negotiation must have to skill to analyze a problem, taking into account the interest of each parties. Negotiation, this skill is help for negotiate to reach agreement in conflict situations. प्रॉब्लम को एनालाइज करना, दोनों के बीच में इफेक्टिव मैटर्स में निगोशिएट करना कि दोनों का इंटरेस्ट भी खत्म ना हो और आपकी जो आप कहना चाहते हैं वो भी सामने को कम्युनिकेट हो जाए या जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए. टू टेकिंग इन अकाउंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्टी, मतलब बोथ पार्टीज जो है जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व इन नेगोशिएशन में उनका इंटरेस्ट हो. विन टू विन सिचुएशन वाली चीज होगी तभी नेगोशिएशन कहलाएगा वो. And good negotiation contributes significantly to business success. Success के लिए होती है. Help you build better relationship बनती है. Deliver lasting quality solution rather than short term solution की जगह पे, and not satisfy the need of the one party to another party. It is a long term process and long term activity, and it helps to avoid future problem and conflicts. Negotiation skill कहते किसको है? What are negotiation skill? In the layman language, it is a bargaining. That is a formal bargaining, collective bargaining in a formal and highly developed from the negotiation. It is a very similar to diplomacy. Diplomacy की तरह है जहाँ पे आप दो लोग पर्सन बात करोगे बिना लड़े बिना झगड़े. अगर कॉमन ऑब्जेक्टिव आप रीच कर रहे हो या बार्गेनिंग कर ले रहे हो तो उसी टर्म को हम नेगोशिएशन कहते हैं. और आप उस स्किल में अच्छे हो तो नेगोशिएशन की स्किल है आपके अंदर. डूइंग इट सक्सेसफुली रिक्वायर एनालिटिकल स्किल, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, डिटैचमेंट होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए. क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको. लेट्स डिस्कस इन कमिंग स्लाइड्स. द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन इज टू सिक्योर an outcome as close as possible to your objective. The aim of the people you are negotiating to secure an outcome as close as possible to their objective. To meet the objective, it is the main purpose. Follow through means determining and evaluating the objectives carefully and objectively. Key test means credibility of the objective and strength of the supportive events. Preparation means well briefed and knowledgeable about you are seeking and how that can be justified. Means if you want to make negotiation, so you have a brief knowledge and skill and how you can be justified your point. It is very important. जब तक आपको नॉलेज ही नहीं होगा या आपको किस चीज पे ब्रीफिंग करनी है वो नहीं होगा तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे सामने वाले को कि हाँ मुझे क्या चाहिए या मेरा कॉमन इंटरेस्ट कैसे हो सकता है. प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेगोशिएशन एंड ट्राई टू शो हाउ योर ऑब्जेक्टिव विल बी बेनिफिटेड टू एज एम्प्लॉयर. अगर आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं तो आप अगर आप सैलरी के लिए ज्यादा बोलेंगे तो एम्प्लॉयर जरूर बोलेगा कि आपको हम सैलरी क्यों ज्यादा दें. तो अगर आप उसका बेनिफिट नहीं बताएंगे एम्प्लॉयर को तो एम्प्लॉयर तो देने से रहा. या गवर्नमेंट में भी गए या कहीं से भी गए आप जहाँ पे भी आप मेंबर हैं नेगोशिएशन के
तो जब तक आप उनका बेनिफिट नहीं बताएंगे तब तक नेगोशिएशन का पॉइंट आना कम है। आगे देखते हैं स्लाइड्स में, वी आर सीइंग कमिंग स्लाइड्स। Present your claims in a pleasant, logical, friendly, and firm way. Release means bring aware from a start. It is a very unusual to achieve 100% objective. Means आपने स्टार्ट किया जब एकदम फ्रेश था, आपको मालूम है कि मुझे क्या ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करना है, लेकिन जब सामने वाले से आप बात कर रहे हैं, whenever you try to negotiate with the another party, तो आपने वेरी अनयूजुअल वे में स्टार्ट करते हुए अपना जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ आप आगे बढ़ गए। A negotiating agreement is normally a compromise between opposing objective which both parties are prepared and accept. Detachment means not believing all your own propaganda. जो propaganda है उन सब पे बिलीव नहीं करना है, उसे डिटैच रहना है। P's of negotiation, negotiation में 4 P's इस्तेमाल होते हैं कॉमनली। वो क्या है? Just like as marketing, it is negotiation is also called as P of negotiations. First, purpose. Purpose decide होना चाहिए. Purpose is decided. Otherwise, it is a wastage of money, manpower, and time. Second, you have a plan, good plan, main agenda on which negotiation will be carried on. Pace. Third is pace. His main points should be covered in discussion. Also, proper break must be introduced to maintain interest of people involved. And personality. Negotiator initiate negotiation must be convincing power. अपनी बात को बताने के लिए, कन्विंस करने के लिए उसी convincing power पे चलनी चाहिए. Effective communication skill can influence people and process of negotiation. Factors affecting negotiation. What is the factor affect in the negotiation? Place where you meet, बहुत important है, must important, क्योंकि आप किसी मीटिंग में बैठ रहे हो या किसी पार्टी के में जाके आप नेगोशिएशन करने की सोचोगे तो नेगोशिएशन नहीं हो पाएगा। वो ऑन टेबल होगा और जहां पे बोथ पार्टीज इंटरेस्टेड होंगी वहीं पे नेगोशिएट हो पाएगा। तो प्लेस फॉर्मली विद सराउंडिंग हेल्प विद in boosting confidence. Time should be adequate for smooth exchange of ideas and securing agreement before it is too late. Attitude of both parties should be positive. दोनों ही चाहते हो कि हाँ negotiation होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, एक पार्टी बोलेगी नहीं मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, हो चुका negotiation, तो दूसरा पार्टी एग्री नहीं होगा सामने वाला, तो आप कितना negotiate करोगे? या आप टाइम पे ले गए, लेट गए, या उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने पे आ रहा है तो आप नेगोशिएशन करने जा रहे हो, या तो स्टार्टिंग में कर लो या तो मिड में कर लो, जहां पे दोनों पॉइंट पे आराम से बैठ के लोग बात कर सकते हैं। और एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए दोनों पार्टीज का ही। और भी अदर फैक्टर्स है कि कैसे रिलेशन है दोनों पार्टीज के बीच में, क्या स्टेटस का डिफरेंस है, क्या इंफॉर्मेशन दोनों के पास है, कितनी एक्सपर्टाइज है। स्किल और टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया आपको पहले। ट्राई टू इमेज योरसेल्फ टू अदर साइड, दूसरी साइड में आप एम्पैथी कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, कि आप निगोशिएशन कर रहे हो तो सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या आर्गुमेंट कर सकता है, क्या प्रपोजल दे सकता है, उसको भी आपको इन माइंड में लेके चलना पड़ेगा। कोई भी निगोशिएशन की परफेक्ट स्टाइल नहीं हो सकती है। किस पॉइंट पे निगोशिएट हो सकता है वो दो पार्टीज और दो इन बिटवीन टू पार्टीज और उनके एटीट्यूड और स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई परफेक्ट स्टाइल होगी, लेकिन हाँ आप पहले से वेल प्रिपेयर रहेंगे कि क्या सामने वाला आर्गुमेंट करेगा, क्या प्रपोजल होगा, क्या रिएक्शन होगा। अगर आप वेल प्रिपेयर रहेंगे तो नेगोशिएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। डिफरेंट पीपल डू इट इक्वली सक्सेसफुल इन डिफरेंट स्टाइल एंड मैनर्स। टू बी सक्सेसफुल योर इंडिविजुअल स्टाइल, अपनी इंडिविजुअल स्टाइल से भी सकते हो जो भी मैच करे दूसरे के सामने वाले की पर्सनालिटी से। सक्सेसफुल नेगोशिएशन रेंज फ्रॉम कलरफुल charismatic performer to quite calm and mythological people। कभी कभी क्या होता है जिनको बहुत अच्छा बोलना आता है वो भी निगोशिएट कर लेते हैं, और कभी कभी क्या होता है जो काम होते हैं, कूल होते हैं, वो भी चीजों को देख के निगोशिएट कर सकती है।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत अच्छा बोलना आ रहा है या स्पीकिंग स्किल अच्छी है तभी आप निगोशिएट कर पाओगे, उसका सामने वाला वो सब देख के नहीं भैया मैं कर ही नहीं रहा हूँ। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। निगोशिएशन प्रोसेस में फाइव स्टेप्स होते हैं, ये प्रोसेस बोल सकते हैं, ये सर्किल प्रोसेस बोल सकते हैं आप। ऑफर होगा, काउंटर ऑफर होगा, कंसेशन होगा, कंप्रोमाइज होगा और एग्रीमेंट होगा। ऑफर होगा, क्या ऑफर किया गया है, क्या काउंटर ऑफर होगा जो आपको एक्सेप्ट करना है, जो भी काउंटर ऑफर होगा। कंसेशन होगा, जो बीच का मोल भाव जिसे बोल सकते हैं जहां पे कंसेशन हो। कंप्रोमाइज होगा और एग्रीमेंट होगा। अब ऑफर क्या है? ऑफर मींस फर्स्ट प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू अनदर इन द नेगोशिएशन स्टेज। काउंटर ऑफर, offer made by second party to first party or proposing their offer against first party offer. Concession, increase or decrease made in the offer or change in the idea. And compromise, sacrifice made by both or one party. भाई बिना अगर compromise नहीं कर रहे हैं, दोनों पार्टी नहीं या एक पार्टी नहीं कर रही, तो एग्रीमेंट आर्गुमेंट ही चलता रहेगा, एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। एग्री किसी पॉइंट पे करने के लिए कहीं ना कभी कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है और कभी कभी कंसेशन जो ऑफर सेकंड पार्टी दे रही है उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। और बाद में एग्रीमेंट पॉइंट वेयर जहां बोथ पार्टीज एग्रीज व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर बोथ। अब रिजल्ट क्या होगा निगोशिएशन का? या हो सकता है लॉस लॉस हो, किसी भी पार्टी को बेनिफिट नहीं हुआ, या तो विन लॉस हो, एक पार्टी को फायदा हो गया दूसरी पार्टी को फायदा नहीं हुआ, लेकिन ठीक है निगोशिएशन हो गया। या ड्रॉ हो गया कि भाई एक पॉइंट पे लाके दोनों ने ड्रॉ कर दिया। और कभी कभी होता है विन टू विन सिचुएशन कि दोनों का इंटरेस्ट सॉल्व हो गया और चीजें सॉल्व हो गई। मेक टू केक्स व्हिच आर मच लार्जर साइज देन द प्रेजेंट साइज, विन टू विन सिचुएशन क्या है। क्या गाइडलाइंस है फॉर सक्सेसफुल निगोशिएशन के? फर्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि लड़ाई ना हो, नहीं तो निगोशिएशन हो चुका। नैरो डाउन टू फ्यू पॉइंट ऑन डिस्प्यूट ऑन कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोवर्सी। जहां भी कॉन्फ्लिक्ट या कंट्रोवर्सी आ रही है वहां पे कभी कभी हमें डाउन भी होना पड़ेगा, आपको ही नहीं बोथ पार्टीज के लिए। स्टेप टू स्टेप अप्रोच होना चाहिए, किस स्टेप पे क्या बात करनी है, क्या आर्गुमेंट करने हैं, क्या उनको ऑफर देना है, क्या सब ऑफर देना है, काउंटर क्लेम करना है। ठीक है। फाइंड अदर पार्टीज स्टेट इन माइंड, कल्चर, बैकग्राउंड, लाइक्स, डिसलाइक्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाला जो पर्सन है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उसके लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है। ये हेल्प करेगा आपको निगोशिएशन स्किल में कि आप उसको और अच्छा कन्विंस कर सकते हो। किसी भी कंपनी में जो क्लाइंट आते हैं ना, वो इसलिए नहीं आते कि वो कंपनी को देख लेते हैं, वहां पे जो पर्सन रहते हैं या जो अप्रोच करते हैं उनको, जो भी मार्केटर को ही बोल दीजिए, अप्रोच करते हैं, तो जो जब उनके लाइक्स मिलते हैं, कल्चर मिलता है, बैकग्राउंड मिलता है, तब वो बिजनेस देते हैं। ठीक है। तो निगोशिएशन स्किल में भी यही इसका बहुत बड़ा बेनिफिट सकता है कि अगर आप सामने वाले का कल्चर, बैकग्राउंड, लाइक्स, डिसलाइक जानेंगे तो ज्यादा चांसेस होंगे। हाइड योर प्रूफ डिजायर, जो आपकी मेन डिजायर है ना उसको हाइड करके रखिएगा। नहीं सब कुछ आप पहले ही बता दोगे ना तो सामने वाला फिर वो निगोशिएशन नहीं करेगा, फिर उसको लगेगा स्टिक होना है तो स्टिक हो जाएगा वो। डोंट डिस्क्लोज योर डेडलाइंस, कब तक काम खत्म करना है वो सब बताने की जरूरत नहीं है। थिंक बिफोर यू स्पीक, आप क्या बोल रहे हो उसको 2 बार सोच के फिर आगे बात करो। नो योर मार्केट इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन जो भी मार्केट्स में चल रही है, क्या रेट्स है, किस रेट पे निगोशिएट हो सकता है, कहाँ पे उसने, अगर मान लीजिए किसी रेट्स पे डिसाइड हो रहा है तो कहाँ पे उसने क्या रेट कोट किया, वो सब इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ब्रिंग योर ऑन एक्सपर्ट, आपके साथ एक्सपर्ट भी होगा जो टेक्निकल, मान लीजिए आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आप कहीं गए निगोशिएशन करने और वहां पे टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत है और आप नहीं ले गए एक्सपर्ट को, तब आपको वो उतनी चीज निगोशिएट नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। और ठीक है, और जब टेक्निकल इंफॉर्मेशन होगी नहीं ना तो आप भी डिफिकल्टी फेस करेंगे, तो इसलिए बोला गया ब्रिंग योर एक्सपर्ट।
कुछ पॉइंट्स और भी हैं निगोशिएशन के लिए। ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप उनको झूठा या गलत कमिटमेंट करके निगोशिएशन कर रहे हो तो वो गलत है। और डोंट निगोशिएट इफ नॉट रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो निगोशिएट मत कीजिए। क्वालिटी देखिए, जैसे फॉर द नॉर्मल, अगर आप दुकानदार या फिर शॉपकीपर के पास जा रहे हैं और आपको मालूम है सही रेट है, सामने वाला भी सही रेट में दे रहा है, दूसरे दुकानदार भी उसी रेट में दे रहे हैं, आप निगोशिएट करना चाहते हैं तो वो क्या करेगा, तो वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करा देगा आपको। तो आप ये देखिए, अगर आपको निगोशिएशन की नहीं जरूरत है तो निगोशिएशन मत कीजिए, क्योंकि क्वालिटी खुद अपने में एक डिस्काउंट है। राइट क्वेश्चन, आस्क द राइट क्वेश्चन, सही क्वेश्चन पूछिए। सम प्लेसेस इट मस्ट बी नेगोशिएट, जहां पे नेगोशिएट हो सकता है वहां आप देखिए, जरूर देखिए। पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटजी बनाइए, जो मैंने आपको पहले ही बताया। स्लोली मेल्ट, ऐसा नहीं कि निगोशिएशन में आपने डेट डिसाइड कर दी, मैं आज ही निगोशिएट करके आऊंगा, टाइम लगेगा। जब तक आपके डिसलाइक्स नहीं होंगे, बैकग्राउंड्स नहीं मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट एजेंडा नहीं डिसाइड होंगे, तो स्लोली मेल्ट होगा, धीरे धीरे मेल्टिंग होगी, टाइम लगेगा निगोशिएशन में। दिस इज आई एम विथ योर अप्रोच। मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ इस पे, आई एम विथ योर अप्रोच। मान लीजिए आप कोई होटल, किसी होटल के पास गए और आपने बुक किया कि मुझे भैया 100 प्लेट्स चाहिए और क्या रेट होगा, उसने अपना रेट बता दिया। फिर आपने क्या कहा कि यार अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी तो इतने रेट होने नहीं चाहिए, ठीक है, या तुम्हें तो अभी पैसे बच रहे हैं, अभी तुम स्टाफ नहीं रख रहे हो उतने, तो क्या वो कम कर देगा? नहीं कम करेगा, क्योंकि अब जब आप आर्गुमेंट करने लगोगे ना तो वो कम नहीं करेगा, फिर वो अपना बताने लगेगा, क्योंकि ईगो होती है सबके अंदर, ठीक है। तो अगर आप ये कह सकते हो ना कि ठीक है भैया जो आप कह रहे हो ठीक है, वो अपनी दिक्कत बताएगा कि भैया कोरोना है, इस वजह से रेट ज्यादा है, सब माल पीछे से, सामान पीछे से नहीं आ पा रहा है, इस रेट से ज्यादा है, या लेबर्स नहीं मिल रही इस वजह से रेट ज्यादा है। आप कहिए आई एम विथ यू, जो आप कह रहे हो सब कुछ सही है, आई एम विथ यू, पर मेरा बजट कितना है, उसको आप अपना बता दो कि कितना मेरे मैं पैसे लगा सकता हूँ। अगर उसको सही लगेगा तो वो रीथिंक करेगा। तो हर जगह पे यही है कि आप उनके साथ रहो, उनको बता दो, लेकिन अपनी जो जो आपका कंस्ट्रेंट है वो भी बता दो आप उनको। आई एम विथ यू अप्रोच, कि ठीक है भैया आप जो कह रहे हो सब सही है, आर्गुमेंट मत करो, नहीं तो वो ईगो में चला जाएगा और हो चुका निगोशिएशन। सबसे ज्यादा निगोशिएशन में प्रॉब्लम ये आती है कि लोग स्टार्ट करते हैं, चीजें होने लगती हैं, फिर कहीं ना कहीं आर्गुमेंट ईगो से कनेक्ट हो जाता है और पूरा का पूरा स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो ये है आई एम विथ अप्रोच, भैया हाँ जो कह रहे हो आप ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं कोट किया, बात होने लगी, डिस्कशन होने लगा, बोलो आई एम विथ यू, सर आप जो कह रहे हो एकदम सही है, लेकिन मेरा बजट इतना है या मैं इतने में देना चाहता हूँ, दोनों तरफ से। नो द पर्सन, पर्सन को जानिए, उसकी डिटेल्स निकालिए निगोशिएशन करने से पहले। ऑफर बेनिफिट, क्या वो आप मैक्सिमम ऑफर बेनिफिट एक्सेप्ट करेंगे वो जानिए। गेट देम ऑन योर साइड, अपनी साइड के पे बता दीजिए। ऑफर बेनिफिट फॉर एक्सेप्टिंग योर ऑफर, किस किस ऑफर पे आप एक्सेप्ट करोगे और कहाँ पे बेनिफिट होगा वो उससे भी चेक कर लीजिए। बी रेडी टू से नो, अगर आपको नहीं हो रहा है निगोशिएट, सही नहीं रेट्स मिल रहा है, आप नो कर दीजिए, कोई तामझाम उतना रखने की जरूरत नहीं है। निगोशिएशन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है लिसनिंग स्किल। पहले जानिए कि लिसनिंग स्किल क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सामने वाला क्या क्या बोल रहा है, आप उसको नहीं सुनते, आप अपना ही बताने लगते हो, ठीक है, तो फिर वो निगोशिएशन के लिए परफेक्ट नहीं होता। तो लिसनिंग स्किल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसमें क्या क्या कर सकते हैं, लिसनिंग स्किल तो है, नो व्हाट यू व्हाट यू वांट, नो व्हाट यू वांट, वांट होना चाहिए, सॉरी,
चलिए समान समझ लीजिए। नो व्हाट यू वांट, कि आप क्या चाहते हैं। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। पता चला उसने कोट कर दिया इतना कि नहीं इतने पे करेंगे, और आपने कैलकुलेट ही नहीं कर रखा कि मेरे को कहाँ पे बेनिफिट होगा या कितना मुझे निगोशिएट करना है। तो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। लॉन्ग टर्म गेम होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म अप्रोच देखिए। मान लीजिए 2 रुपए आपने कम करा लिए, लड़ झगड़ के भी, जैसे भी निगोशिएट करा के, जो भी समझ लीजिए आप, लेकिन नहीं देख रहे ये कल कल कितना बड़ा बिजनेस देगा, कितना बड़ा बिजनेस आएगा। तो उस अप्रोच को भी ध्यान दीजिएगा। बॉडी लैंग्वेज और आपका पेशेंस दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डोंट गिव अप इन टू इजली मत दीजिए। आप बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, आर्ग्यू कीजिए। आर्ग्यू मतलब नहीं, एग्री कीजिए, चीजों को डिस्कस कीजिए, चैट कीजिए। एक बार आपने ऑफर कर दिया, बी क्वाइट आफ्टर मेकिंग योर ऑफर। आपने एक बार ऑफर कर दिया, थोड़ी देर की चुप हो गई, अब आप ही मत बोलने लगी ब्ला 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 ब्ला। अब सामने वाले को सोचने का मौका दीजिए। कभी कभी क्या होता है, आपने ऑफर किया, फिर आप ही बताने लगे क्यों ऑफर जरूरी है। जैसे आपने कोचिंग्स में देखा होगा या बहुत सी जगह पे देखा होगा कि रेट बताया, उसके बाद खुद ही बताने लगे। चुप हो जाइए आराम से, वो सामने वाला सोच के बताएगा आपको, थोड़ा टाइम दीजिए। कनेक्ट ऑन द पर्सनल लेवल, जो मैंने आपको बोला है कि अगर आप जानेंगे लाइक्स डिसलाइक कनेक्ट होंगे। कनेक्ट ऑन पर्सनल लेवल इसलिए बोलते हैं ना सर कि कोई भी बिजनेस कंपनी को देख के नहीं आता, नहीं तो सब टाटा वाले के पास ही आती है। ठीक है, वो क्लाइंट टू क्लाइंट होता है, पर्सन टू पर्सन होता है। वो आपके पर्सनल लेवल को देखता है, जो आपके कनेक्शन है उसको देखता है, उसके बाद वो बिजनेस आता है। बी रेडी टू से सॉरी। अगर सामने वाले की, जैसे आप नो कर रहे हो, वैसे अगर सामने वाले ने किया आपको, तो आप सॉरी भी कह सकती हो। कभी कभी होता है, नहीं होती चीजें। ठीक है, या कुछ ऐसी कमिटमेंट वो मांग रहा है आपसे निगोशिएशन में कि जो आप नहीं कर सकते, तो मना कर दो, सॉरी सॉरी सर नहीं हो सकता, ये मेरे नहीं कर सकता हूँ। ये जो भी आपका जो भी आपका एरिया है, जो हाँ जहाँ आपकी लिमिट है वहां तक आप कीजिए। प्रिपेयर बाय नोटिंग डाउन, जितनी भी ऑब्जेक्शन सामने वाला बताए आप उसको प्रिपेयर कीजिए, उसको रिजॉल्व कीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। जब ये करेंगे ना, तो वो ज्यादा आप पे इम्प्रेस भी होगा, कनेक्ट भी करेगा आपको पर्सनल लेवल पे, और आप आपकी चैट्स को और आपके डिस्कशन को सुनेगा भी। तो जो भी ऑब्जेक्शंस है, तो निगोशिएशन स्किल, निगोशिएशन स्किल पे अभी तक का जो टॉपिक है, मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। आई होप कि ऑल यू लर्न एंड अप्लाई कीजिए, इट गिव्स अ गुड रिजल्ट्स। ओके बाय। अपने कमेंट्स आप दे सकते हो मुझे ईमेल आईडी पे, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ भी सकते हैं, कमेंट्स भी दे सकते हैं, और किस टॉपिक पे मैं लेके आऊं उसे भी बता सकते हैं आपको। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।